برمنگھم کے مقامی ریسٹورنٹ میں برٹش کشمیری رہنماؤں کا ایک اہم اجلاس ہوا جس میں تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے کشمیریوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کے خلاف بھارتی عدالت کے غیر منصفانہ فیصلے کی شدید مذمت کی اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یاسین ملک کی رہائی کے لیے کردار ادا کرے۔ مزید احوال برمنگھم سے عابد کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ بھارت کی خصوصی عدالت کی جانب سے آزادی کشمیر کی بلند آواز حریت رہنما یاسین ملک کو دہشت گردی کی مالی معاونت کے جھوٹے مقدمے میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ دنیا بھر میں بسنے والے کشمیریوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ بھارتی عدالت کے فیصلے کے خلاف احتجاج کے لیے برمنگھم کے مقامی ریسٹورنٹ میں برٹش کشمیریوں کا ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کر کے انڈین عدالت کے غیر منصفانہ فیصلے کی بھرپور مذمت کی۔ مہمان خصوصی آزاد کشمیر منگلا ڈیم ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ایم ڈی چودھری منشا نے کہا کہ بھارتی عدالت نے جموں اور کشمیر لبریشن فرنٹ کے سربراہ کے خلاف عمر قید کے ساتھ ان پر 10 لاکھ بھارتی جرمانہ عائد کیا۔ اس فیصلے کے خلاف سری نگر سمیت مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ہم اس فیصلے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہندو سامراج اتنا ڈر چکا ہے ہمارے کشمیری بہادر نڈر رہنما یاسین ملک صاحب کو، جس طرح انہوں نے عمر قید کی سزا سنائی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنا کے ہم تحریک آزادی کشمیر کو دبا دیں گے، پر وہ ان کی بھول ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان کے جو یہ انہوں نے سزا سنائی ہے، تحریک آزادی کشمیر میں ایک نیا ولولہ، ایک نیا جذبہ اور کشمیریوں میں ایک نئی جان ڈل چکی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس وقت ہم نہیں بیٹھیں گے جتنی دیر تک ہم اپنے کشمیر کو آزاد نکلوا لیں گے۔ صدر آزاد کشمیر کے مشیران بریسٹر کرامت حسین، چودھری خادم حسین، چودھری دل پذیر، شہزاد چودھری، عبدالغفور اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا لبریشن فرنٹ کے چیئرمین اور تحریک آزادی کشمیر کے ہیرو یاسین ملک کے خلاف نام نہاد عدالت نے انصاف کے تقاضوں کو پس پشت ڈال کر بھارتی حکومت کے امام پر مجرم قرار دیا ہے۔ اس موقع پر چودھری منشا، بریسٹر کرامت، چودھری خادم حسین اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا کی عدالتوں سے آج تک کسی بھی کشمیری لیڈر کو انصاف نہیں ملا، اس لیے وہ اس سارے نظام کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا چاہتے ہیں۔ The judicial system has just committed a suicide in occupied Kashmir by sentencing Yassin Malik to life imprisonment. He was a freedom fighter. He had nothing to do with terrorism. The so-called atrocities which are mentioned by the Indian government, they are falsified and they are non-existent. He is just carrying out the mandate which has been given to all Kashmiris via the United Nations since 1947. جو بھی آزادی پسند قومیں ہیں یا آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کے لیے ایک سیاہ ترین دن ہے کہ ایک ایسے شخص کو سزا دی گئی ہے جس نے کوئی جرم نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ آزادی مانگ رہا ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ آج اس پلیٹ فارم سے اپنے ان بہن بھائیوں کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، کھڑے ہیں، انشاءاللہ رہیں گے جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا۔ کشمیر کے اندر حریت رہنما یاسین ملک صاحب کو قید کی سزا سنائی گئی ہے، ایک مذمتی اجلاس کیا گیا اور اس میں تمام کشمیری اور پاکستانی یہاں گٹے اور اس چیز کی مذمت کرتے ہیں اور بین الاقوامی برادری سے، خاص کر یورپین کنٹری سے، یو کے سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہندوستان کی گورنمنٹ نے جو یہ کام کیا ہے بالکل غلط کیا ہے، ہمیں یہ نامنظور ہے اور ہم اس کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گے اور اقوام متحدہ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یاسین ملک کی سزا جو ہے نا وہ ختم کرائی جائے۔ انڈیا کی عدالتوں نے یہ بہت بڑا ایک متعصبانہ اور غاصبانہ اور منافقانہ فیصلہ دیا ہے جس کی ہم ہر موڑ پر، ہر سٹیج پر مذمت کرتے ہیں، اور یہ برطانیہ میں بسنے والے کشمیری اور پاکستانی اس کی جدوجہد جاری رکھیں گے اس وقت تک جب تک ہمیں رہائی نہیں مل جاتی، آزادی نہیں مل جاتی اور یاسین ملک کو وہ رہا نہیں کرتے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ بھارت عالمی سطح پر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایک جمہوری ملک ہے، لیکن نریندر مودی نے انڈیا کو دنیا کے سامنے برہنہ کر دیا ہے۔ آج یقیناً کشمیر کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے اور یہ جو بھارتی RSS کی اور فاشسٹ حکومت نے جو یاسین ملک صاحب کو عمر قید کی سزا دی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور یہ بھارتی جو BJP کی فاشسٹ حکومت ہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے کہ اس طرح یہ جو ہے کشمیر کی آزادی کی تحریک کو دبا سکے گی۔ پورا مقبوضہ کشمیر میں آزاد کشمیر میں کئی مقبول شہید اور پیدا ہو چکے ہیں، اسی طرح برہان الدین وانی کی تحریک کو دبا کے تم نے اور کئی برہان الدین وانی، اسی طرح جو تم نے آج بے
बेसाख्ता किस्म की जो यासीन मलिक को जो आज जो सजा दी है, इसकी हम पूरे मिडलैंड की तरफ से पुरजोर मजम्मत करते हैं और इंशाल्लाह जब तक वो उसकी राही नहीं हो जाती हम चैन तक नहीं बैठेंगे। शुरका का मजीद कहना था कि बैरून ममालिक बसने वाले तमाम कश्मीरी अपने असीर कश्मीरियों की आवाज हर फोरम पर बुलंद करने में हरावल दस्ते का किरदार अदा करते रहेंगे। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के खिलाफ भारतीय अदालत के गैर मुनसिफाना फैसले के खिलाफ दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरियों का रद्द अमल जारी है। यूनान में फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर और जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने भारतीय हुकूमत की सख्त मजम्मत करते हुए कहा है कि आलमी दहशतगर्द मोदी अब हुर्रियत रहनुमाओं को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी यासीन मलिक की सजा के खिलाफ आलमी अदालत में फौरी तौर पर केस दायर करें। इंडियन अदालत ने जो जुल्म जबर, बर्बरियत और नाइंसाफी का फैसला यासीन मलिक के खिलाफ दिया है, जो उनको उम्र कैद की सजा सुनाई है, इस तरह ये इंडिया के होछे हथकंडे कश्मीरियों को उनके हक के खुद इरादियत से कभी पीछे नहीं कर सकते और ना वो कश्मीर की काज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इंडिया को हम बावर करवाना चाहते हैं, ये जो अदालतें जो उन्होंने हिंदुआना सिस्टम के तहत मुसलमानों को पीछे कर रहे हैं, कश्मीर में अपना जुल्म जबर कर रहे हैं, इंडिया तुम्हें कश्मीर को छोड़ना होगा। लिहाजा पूरे कश्मीर को जो जेल में तब्दील कर दिया गया है, आलमी इदारों से और इंसानी हकूक की तंजीमों से रब्ता करके यासीन मलिक साहब की सज़ा को ख़त्म करवाने की पाकिस्तान गवर्नमेंट को भरपूर कोशिश करनी चाहिए और उनके आले खाना को यासीन मलिक साहब से जल्द अज जल्द मिलने की इजाज़त होनी चाहिए। कश्मीर की तहरीक आज़ादी, उसके साथ पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी है, पूरी उम्मत मुसलमान खड़ी है और इंशाअल्लाह कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा। यासीन मलिक साहब जो कि मुमताज कश्मीरी रहनुमा हैं, उनको कैद किया हुआ है और आजकल इंडियन गवर्नमेंट उनके जुडिशल मर्डर का मंसूबा बना रही है। हम पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों से और बिलखसूस कश्मीरी लोगों से अपील करते हैं कि उनकी रिहाई की दुआ करें और इंडियन गवर्नमेंट के इन इक़दामात की भरपूर मजम्मत करें और पूरी दुनिया में इस जुडिशल मर्डर को हाईलाइट करें और लोगों से अपील करें कि वो यासीन मलिक साहब की आवाज बने। जो भी आलमी फोरम पर, आलमी दुनिया पर जो इंसानी हकूक की तंजीमें काम कर रही हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो हुर्रियत रहनुमा की रिहाई के लिए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और पाकिस्तान की क़यादत और पाकिस्तान के अदारों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी इस मामले को सीरियस लें और यासीन मलिक साहब के खिलाफ जो भारत का गाजिबाना मंसूबा है उसको रोकने के लिए अपना भरपूर अमली किरदार अदा करें। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन और हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ न्यूयॉर्क के मारूफ इलाके टाइम स्क्वायर पर कश्मीरी कम्युनिटी ने एहतजाज किया, जिसमें कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने यासीन मलिक की रिहाई के हक में और इंडिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। तफसीलात के लिए देखते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ खुरम शहजाद की रिपोर्ट। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के खिलाफ मन घड़त मुकदमे में भारतीय अदालत के गैर मुनसिफाना फैसले के खिलाफ अमेरिका में भी मुजाहरे जारी। न्यूयॉर्क की फिजा कश्मीर की आजादी और यासीन मलिक की रिहाई के नारों से गूंज उठी। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में होने वाले मुजाहरे में ओवरसीज पाकिस्तानियों और कश्मीरियों ने भरपूर शिरकत की और यासीन मलिक के खिलाफ अदालती फैसले की सख्त अल्फाज में मुजम्मत की। शुरका ने कश्मीर के परचम और मुख्तलिफ बैनर्स उठा रखे थे जिन पर यासीन मलिक के हक में नारे दर्ज थे। इस मौके पर शुरका ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। शुरका ने भारतीय फौज के कश्मीर से इनखला और आजादी और यासीन मलिक की रिहाई के नारे लगाए। मुजाहरे के
शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भारत की जानिब से कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करते हुए कहा कि भारत ने हुर्रियत रहनुमाओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिसके जरिए वो कश्मीरियों की आवाज को दबाना चाहता है। भारत को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। आलमी बरादरी भारतीय नाइंसाफियों और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। शुरका का मजीद कहना था कि यासीन मलिक को झूठे मुकदमे में सजा देकर भारतीय अदालतों ने इंसाफ का कत्लेआम किया। कश्मीरियों की मुकम्मल आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए जहाँ पे कश्मीरी कम्युनिटी अहम किरदार अदा करे, वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी और इंडिया में रहने वाले मुसलमानों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कश्मीर की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार करें और कश्मीरियों को मुकम्मल आज़ादी और खुद मुख्तारी दिलवाएं। हम पूरी दुनिया को, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमों को ये बात कहना चाहते हैं कि यासीन मलिक जो आज़ादी की जदोजहद कर रहा था, उसको आज टेररिस्ट मोदी ने उम्र कैद दी है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हिंदुस्तान ने जो कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक साहब को उम्र कैद की सजा दी है, उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और यूनाइटेड नेशन से ये मुतालबा करते हैं कि खुदारा 7 दहाइयाँ गुजर गए हैं, कश्मीरी अपना जो उनका राइट है, जो आपने उनको राइट दिया है सेल्फ डिटर्मिनेशन का, उसको पूरा करें। यासीन मलिक के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई है, उन्हें एक झूठे और बेबुनियाद मुकदमे के अंदर कन्विक्ट करके 2 दफा सजा उम्र कैद की सजा दी है। हम यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के सामने भी और इस वक्त टाइम स्क्वायर में जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें उनके ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुज़ाहिरे में शरीक कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमाओं ने भारत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर यासीन मलिक को रिहा करे और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो भारत पर दबाव डाले। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, अमरीका। सऊदी अरब में हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के खिलाफ भारत की जानिब से उम्र कैद के फैसले के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें आज़ाद और मकबूजा कश्मीर के शहरियों ने शिरकत की और यासीन मलिक के साथ इजहार यकजहती भी किया। मज़ीद तफसीलात उमर अली की इस रिपोर्ट में। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में जम्मू और कश्मीर ओवरसीज़ फोरम की जानिब से मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से इजहार ख्याल करते हुए शुरका का कहना था कि यासीन मलिक करोड़ों कश्मीरियों की आवाज़ है, जिनको भारत की जानिब से नाम नेहाद और बेबुनियाद मुकदमात में काले कवानीन के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिसकी वो शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। शुरका का मजीद कहना था कि भारत जहाँ गुज़िश्ता 70 सालों से मजालिम ढा रहा है, वहीं हुर्रियत रहनुमाओं की आवाज़ों को दबा देना चाहता है, मगर भारत यासीन मलिक जैसी तवाना आवाज़ को किसी सूरत दबा नहीं सकेगा। आलमी बरादरी समेत अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी तावन तंजीम OIC को चाहिए कि वो भारत की जानिब से यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा खत्म करवाए और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए भारत पर दबाव डाले। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो मकबूजा कश्मीर की जद्दोजहद में अपनी कोशिशों को मजीद आगे बढ़ाए और यासीन मलिक के खिलाफ भारत के झूठे प्रोपेगेंडे का खात्मा मुमकिन बनाए और दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरी भी जद्दोजहद आज़ादी के लिए एहतजाज को यकीनी बनाए ताकि भारत का मकरूज चेहरा बेनकाब हो सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस से सलीम आफ्ताब, इफ्तिखार शाकर, रशीद खान, इफ्तिखार अब्बासी, जाकिर जज्बी, तौफीक आफ्ताब, आसिम और ज़काउल्लाह मोहसिन ने खिताब किया। उमर अली, नुमाइंदा 92 न्यूज़, रियाज, सऊदी अरब। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर हो गया। साबिक हुकूमत की EVM और ओवरसीज वोटिंग के हवाले से इलेक्शन एक्ट में तरमीम खत्म हो गई। समंदर पार पाकिस्तानियों से वोट का हक वापस ले लिया गया। नैब तरमीमी बिल 2021 में दूसरी तरमीम भी कसरत राय से मंजूर कर ली गई। बिल में चेयरमैन नैब की रिटायरमेंट के बाद का तरीक़ाकार वज़ा कर दिया गया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली इजलास में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया गया, जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज वोटिंग के हवाले से साबिक हुकूमत की तरमीम खत्म हो गयी। समंदर पार पाकिस्तानियों से वोट का हक भी वापस ले लिया गया। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने ऐवान को बताया कि कानून में बेहतरी की गुंजाइश रहती है। साबिक हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर मुतनाज़ा तरमीम पेश की। असेंबली इजलास में कौमी एहतसाब आर्डिनेंस 1999 में मजीद तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। नए तरमीमी बिल के तहत 24 घंटे में मुलजिम अदालत में पेश किया जाएगा। रिमांड 90 दिन के बजाय 14 दिन का होगा। गिरफ्तारी से पहले ठोस शवाहिद देना होंगे। माली फायदा न उठाने की सूरत में विफाकी या सूबाई काबीना के फैसले नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आएंगे। किसी भी रेगुलेटरी इदारे के फैसलों पर भी नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। बिल में चेयरमैन नैब की रिटायरमेंट के बाद का तरीकाकार
बार वजह कर दिया गया है। चेयरमैन नैब की रिटायरमेंट पर डिप्टी चेयरमैन का मुकाम सरबराह होंगे। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तेफाक राय न होने पर मामला पार्लिमानी कमेटी में पेश किया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी चेयरमैन नैब का नाम 30 रोज में फाइनल करेगी। नए चेयरमैन नैब के तकर्रुर के लिए मुशावरत का अमल 40 रोज में मुकम्मल होगा। एहतसाब अदालतों में जजेस की तैनाती 3 साल के लिए होगी। एहतसाब अदालत के जज को हटाने के लिए मुताल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत जरूरी होगी। एहतसाब अदालतें करप्शन केसेस का फैसला 1 साल में करेंगी। किसी के खिलाफ केस झूठा साबित होने पर जिम्मेदार शख्स को 5 साल तक की कैद की सजा होगी। याद रहे कि 17 मई को 92 न्यूज ने नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम से मुतालिक खबर ब्रेक की थी। नैब तरमीम से PTI, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबको रिलीफ मिलेगा। PTI की साबिक हुकूमत की जानिब से ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक देने के लिए की गई तरामीम को मौजूदा हुकूमत ने खत्म कर दिया। इस हवाले से कौमी असम्बली में इंतखाबात तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। PTI लंदन के सदर बैरिस्टर वहीदुर रहमान, पीपल्स पार्टी बरतानिया के सदर मोहसिन बारी और प्रोफेशनल फोरम के अहदेदार ने हुकूमत के इस इक़दाम पर क्या रद्द अमल दिया, आइए देखते हैं। पाकिस्तान असम्बली में जिस तरह से एक नया बिल पेश करके ओवरसीज पाकिस्तानियों से जो उनको वोटिंग का राइट दिया गया था उसको छीना गया है, उस बिल को मंसूख किया गया है, इसकी ओवरसीज पाकिस्तानी पुरजोर मजम्मत करते हैं और अदलिया पाकिस्तान से और हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि इसका नोटिस ले। खुसूसी अदलिया से हम अपील करते हैं कि वो फौरन तौर पर 100 नोटिस ले और इस बिल को स्टॉप करे। किसी भी गवर्नमेंट को सियासी तौर पर सियासी मफादात की खातिर ये हक नहीं पहुंचता कि वो ओवरसीज को, जो कि उसी तरह से पाकिस्तानी है जिस तरह दूसरे पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहते हैं, उनसे उनका बुनियादी हक जो वोटिंग का हक है वो छीन कर वो इसको खत्म करते हैं। ओवरसीज के जो मसाइल हैं वो ओवरसीज के लोग ही बेहतर जानते हैं और समझते हैं, इसलिए यहीं से कोई नुमाइंदा होना चाहिए। और ये हमारी डिमांड भी ये भी रही है कि ओवरसीज का एक कोटा जो है वो चारों सूबाई असम्बली के अंदर और कौमी असम्बली में सेनेट में भी होना चाहिए। इस हवाले से अगर आप देखें तो मोर देन 31 अरब डॉलर जो हैं वो हम पाकिस्तान भेजते हैं और उनकी नुमाइंदगी होना बहुत ज़रूरी है। तो एक कोटा रखा जा सकता है ओवरसीज के लिए, जो ओवरसीज के मसाइल को हल भी हो सकता है। ओवरसीज वोटिंग राइट्स के हवाले से इन्होंने बिल पेश किया हुआ था, उसको इन्होंने अंडू कर दिया है। अब इसका नुकसान ये होने जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स वाला बिल था EVM और जो ओवरसीज वोटिंग राइट्स वाला बिल था, जहां जिसका मतलब था कि हम यहाँ बैठ के अपने वोट के राइट को इस्तेमाल कर सकते हैं ऑनलाइन, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया है। प्रैक्टिकली इसका नतीजा ये निकलेगा कि अब सदर साहब जो है उन्होंने इसको साइन करना है, जो वो 10 दिन तक डिले कर सकते हैं, इसको वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं और अगर ये नहीं होगा तो फिर ये ज्वाइंट सेशन में जाएगा और ज्वाइंट सेशन में पास होगा, विच मीन्स कौमी असेंबली और सेनेट। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट साहब के पास 10 डेज होते हैं। लेकिन बहरहाल अगर ये इवेंचुअली पास हुआ भी तो हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी 2 केसेस 2 जजमेंट मौजूद हैं जिसके मुताबिक ओवरसीज वोटिंग जो है वो होनी चाहिए। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप के चेयरमैन चौधरी परवेज इकबाल ने कहा है कि हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करके दियार गैर में बसने वाले 90 लाख पाकिस्तानियों को मायूस किया है। वोट के हक को ख़त्म करने का फैसला ना लिया गया तो हम सीसा पिलाई दीवार बनकर हुकूमत का मुकाबला करेंगे। हुकूमत फौरी तौर पर फैसला वापस ले। अपने वीडियो पैगाम में परवेज इकबाल लोसर का मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। आज 90 लाख पाकिस्तानियों का दिल तोड़ा गया है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक वोट का हक दिया गया था वो आज उनसे हक वापस ले लिया गया है। मैं पाकिस्तान के सियासतदानों को, पाकिस्तान के अवाने अबाला को, तमाम लोगों को ये बात बावर कराना चाहता हूं, हमारे यूरो, पाउंड, डॉलर, दिरहम, हमारा पैसा फ्लड हो या जलजला हो या पाकिस्तान की मदद हो वो तो कबूल हैं, लेकिन हमारा वोट नहीं। लेकिन इसके साथ ये वादा किया गया था कि अगर वोट का हक जाता है तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मखसूस नशिस्तें होंगी। मैं ये समझता हूं ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ हमेशा सुतेले बच्चे वाला सलूक हुआ है। अभी ओवरसीज पाकिस्तानियों को हम एक गयूर कौम है, गयूर पाकिस्तानी हैं। 90 लाख के 90 लाख एक पेट पे खड़े हैं। सबसे पहले पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान
اور ہمارے ووٹ کا جو حق چھینا گیا ہے یہ حق ہمیں واپس ملے. یہ خوف نہ ہو کس پارٹی سے, کس جگہ سے, کس علاقے سے, کس مذہب سے, کس قوم سے, ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں. اگر ووٹ کا حق واپس نہ دیا گیا اور مخصوص نشستوں کا بھی اعلان بھی نہیں کیا گیا, اس کا مطلب ہے خوردم نشستم اینڈ رفتم. ہم ان کے سامنے سیسا پلائی دوار بن جائیں گے. اوورسیز پاکستانی جو ہیں یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. رہتے تو ہم دنیا کے جس ملک میں ہیں, پردیش میں, دل ہمارے پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ہم اس وقت تک جب تک اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق یا ان کو اسپیشل سیٹیں نہیں ملتی, ہم سراپا پروٹیسٹ کرتے رہیں گے. پاکستان میں عمران خان کے لانگ مارچ کے خلاف پولیس ایکشن پر امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں پی ٹی آئی کارکنوں نے احتجاج کیا, جس میں اوورسیز پاکستانی بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے. اس موقع پر لانگ مارچ کے دوران جاں بحق ہونے والے پی ٹی آئی کارکنان کی یاد میں شمعیں روشن کی گئیں, دعائیں مغفرت بھی کی گئی. فضا عمران خان کے حق میں نعروں سے گونجتی رہی. تفصیلات نمائندہ 92 نیوز خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں. واشنگٹن ڈی سی میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کی حمایت میں ہونے والے مظاہرے کا اہتمام پی ٹی آئی واشنگٹن کے صدر جانی بشیر کی طرف سے کیا گیا. مظاہرے میں اوورسیز پاکستانی اور پی ٹی آئی کارکن اپنی فیملیز کے ساتھ شریک ہوئے. اس موقع پر فضا عمران خان کے حق میں نعرے بازی سے گونجتی رہی. تیری شان میری شان عمران خان, عمران خان, تیری شان میری شان عمران خان, کون بچائے گا پاکستان, عمران خان, عمران خان. مظاہرین نے سابق وزیر اعظم عمران خان سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے لانگ مارچ کے شرکا پر پولیس کے تشدد اور گرفتاریوں کی سخت مذمت کی. ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے پی ٹی آئی کے پرامن لانگ مارچ کو زبردستی روک کر اسے پرتشدد بنا دیا. آج جو کچھ بھی پاکستان میں ہوا ہے اس کی میں پرزور طریقے سے مذمت کرتا ہوں, اور خواتین پہ جو مظالم ڈھائے گئے ہیں اور ہمارے پی ٹی آئی کے کارکنوں پہ جو ظلم کیا گیا ہے اور جو مواد واقع ہوئی ہیں ان میں سب چیزوں کی مذمت کرتا ہوں, اور خان صاحب کے ساتھ مکمل طور پہ کھڑے ہیں. Stand with Pakistan and Imran Khan and all the people that are on the long march in Islamabad. ہماری آخری امید عمران خان اور قائد اعظم کے بعد عمران خان ایسے لیڈر ہیں جن کو کوئی نعمت بدل نہیں ہے, اور ہم چاہیں گے کہ عمران خان کو زندگی سے سلامتی کے ساتھ پاکستان کا وزیر اعظم دوبارہ بنائے. جس طریقے سے عمران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا, ایک دیانتدار حکومت تھی جو ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کیا ہوتا, اور ان چوروں ڈاکوؤں نے جس طریقے سے ختم کیا وہ کنڈیمیبل ہے اور ہم اس کو کنڈیم. I love Imran Khan. He is a good leader. He fights corruption, so he is out. May Allah with Imran Khan. مظاہرے کے منتظم جانی بشیر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں آج جو کچھ ہوا ہے اس پر سب اوورسیز پاکستانیوں کے دل غم زدہ ہیں. ہمارا دل پاکستان سے دھڑکتا ہے, پاکستان ہماری جان ہے. ہم بے حد غمگین ہیں, اداس ہیں, افسردہ ہیں کہ پاکستان میں جو آج ہوا ہے, جس طرح پولیس نے بربریت کا مظاہرہ کیا ہے, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے جو ہمارے قائد ہیں عمران خان کو کامیاب کرے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں جتنی جلدی وہ الیکشن اناؤنس ہو تاکہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام جو ہے اپنا لیڈر خود چن سکے. شرکا نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان ان کی آخری امید ہیں, ان کا کوئی نیم البدل نہیں. الیکشن ہوئے تو عمران خان کو پوری قوم دوبارہ وزیر اعظم بنا دے گی. ہم لوگ عمران خان کے ساتھ بہت جوش اور جذبے کے ساتھ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور ہماری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور الیکشن ہو. الیکشن ہونے کے بغیر بھی آپ دیکھیں پوری قوم اس کے ساتھ ووٹ کے ساتھ ہے. قائد اعظم کے بعد ہمیں عمران خان ملا ہے جو ہماری لاسٹ ہوپ ہے پاکستان کی, لیکن جو کچھ اب ہم دیکھ رہے ہیں اور جو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ اب پاکستان میں ایک عمران خان نہیں, ہر شہر, ہر گلی, ہر کونے سے ایک عمران خان نکل رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو یہ ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے مل جل کے یہ ہم پہ جو پاکستان کا سارا گند اکٹھا کر کے ہم پہ مسلط کر دیا ہے, آپ اس کو صاف کریں. میں سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مجرموں کو ریلیکس لا اور ریلیکس رولز کے تحت جو دیا گیا, جس کی وجہ سے آج یہ ملک یہ پریشانی دیکھ رہا ہے, میں درخواست کرتا ہوں پلیز جتنے بھی مجرمان ہیں جو پریویسلی جن کو ریلیکس دیا گیا قانون کے ذریعے سے, ان کو واپس ریورس کیا جائے سارے رولز اور ریگولیشن کو, اور ان پہ کیس داخل کیا جائے دوبارہ تاکہ وہ پکڑے جائیں مجرم. آج پاکستان کے جو حالات دیکھ رہے ہیں, دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا ہے. آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں سیاہی سے لکھا جائے گا. پاکستان میں جو ظلم و بربریت کا ایک تماشا پولیس نے شروع کر رکھا ہوا ہے, اور ان کی جو حکومت ہے اس وقت
जो कि एक सेलेक्ट हुई हुई है, जो एक इम्पोर्टेड हुकूमत है, दूसरों के कहने के ऊपर वो पाकिस्तान पे मुसल्लत हुए हैं। मुज़ाहरे के शुरका ने दिल दिल पाकिस्तान और दीगर मिली नगमे गाकर माहौल गरमा दिया। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान। शुरका ने लॉन्ग मार्च के दौरान जाम हक होने वाले पीटीआई कारकुनों के लिए दुआए मगफरत भी की। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को बचा, हमारे पाकिस्तान को इन दुश्मनों, इन चोरों से बचा। या अल्लाह, जो कि जो हमारे पर मुसल्लत किए गए हैं, जो चोर मुसल्लत किए गए हैं, ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, अल्लाह ताला अपने करम से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके इनसे बचा। मुज़ाहरे के आखिर में शुरका ने जाम बहक अफराद के हक में शमे रोशन करके उन्हें खराज अकीदत पेश किया, जबकि टेक्सास फायरिंग में हलाक होने वाले अमरीकी बच्चों की याद में 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के आलमी दिन के मौका पर एक खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें 6 पाकिस्तानी अमन दस्तों के अरकान को बादुज़ मर्ग एजाज़ दिया गया। 2021 में अक़वाम मुत्तहिदा की खिदमत में 6 पाकिस्तानियों ने जान का नजराना पेश किया, जिन्हें न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में होने वाली तकरीब में बादुज़ मर्ग एजाज़ दिया गया। बादुज़ मर्ग एजाज़ पाने वालों में दुनिया भर से अक़वाम मुत्तहिदा के 117 अमन फौजी शामिल हैं। पाकिस्तान के ताहिर इकराम, ताहिर महमूद, मोहम्मद नईम, आदिल जान, मोहम्मद शफीक और इब्रार सैयद को बादुज़ मर्ग एजाज़ मिलेगा। इन फौजियों के हवाले से अपने ताज़ियती पैगाम में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना था, वो पाकिस्तानी फौजियों के खानदानों और प्यारों के साथ दिली ताज़ियत पेश करते हैं, यकीन दिलाते हैं कि उनका नुकसान रायगा नहीं जाएगा। इन अमन फौजियों ने अपनी जानों से अक़वाम मुत्तहिदा की रूह और रसूलों के साथ अपनी वाबस्तगी का मुजाहिरा किया। अब अपने बहादुर जवानों को हमेशा याद रखेंगे। उनकी अजीम कुर्बानी अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान की लाज़वाल खिदमत का एक और सबूत है। बेल्जियम के बाद वफाकी वज़ीर तिजारत और सरमायाकारी सैयद नवीद कमर का नेदरलैंड्स का मुख्तसर दौरा। नेदरलैंड्स के शहर दी हैग में वजारत खारजा के हुक्काम के अलावा कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें की। वफाकी वज़ीर सैयद नवीद कमर के हमरा पाकिस्तानी सिफारत खाने के फर्स्ट सेक्रेटरी मोहम्मद वासिफ और कमर्शल अताशी रिजवानुल हक भी थे। मजीद अहवाल डॉक्टर कामरान की इस रिपोर्ट में। बेल्जियम के बाद वफाकी वज़ीर तजारत और सरमायाकारी सैयद नवीद कमर का नीदरलैंड का मुख्तसर दौरा। नीदरलैंड की वजारत खारजा और कारोबारी शख्सियत से मुलाकातें भी की। वफाकी वज़ीर बराए तजारत और सरमायाकारी सैयद नवीद कमर ने दी हैग में पाकिस्तानी सफारत खाने के फर्स्ट सेक्रेटरी मोहम्मद वासिफ और कमर्शल अताशी रिजवानुल हक के हमरा नीदरलैंड की वजारत खारजा में अहम मुलाकातें की और 2 तरफा तजारती तल्लुकात पर बातचीत की। वफाकी वज़ीर ने पाकिस्तान हाउस दी हैग में पाकिस्तानी ताजरों से भी बातचीत की और पाकिस्तान में बरामदात में इजाफे पर इनकी कारकर्दगी को सराहा। इस मौका पर मीडिया से बात करते हुए सैयद नवीद कमर का कहना था कि पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान तजारती तल्लुकात को मजीद बेहतर करने के लिए बहुत से इम्कानात मौजूद हैं। टेक्सटाइल के अलावा एग्रीकल्चर के शोबा में पाकिस्तान नीदरलैंड से इस्तेफादा कर सकता है। दूध को महफूज करने और इसकी दीगर प्रोडक्ट्स बनाने, वाटर मैनेजमेंट में नीदरलैंड की जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है और इन शोबों में सरमायाकारी के इम्कानात भी मौजूद हैं। एग्रीकल्चर में ओवरऑल एक बहुत बड़ा हमारे पास विंडो है ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जिसको हम जो है हासिल करना चाहते हैं। हमारे दूध की प्रोडक्शन होती है, लेकिन बहुत सारा दूध ज़ाया हो जाता है, तो उस दूध को प्रोसेस करने में और उसमें से और जो है वो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यहाँ से हम चाह रहे हैं कि कोलैबोरेशन आए। फिर वाटर मैनेजमेंट है, मसलन काश्त करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, इरिगेशन की ज़रूरत होती है। उसकी मॉडर्न टेक्निक्स इस्तेमाल करके हम बहुत सारा पानी बचा सकते हैं, जो इस वक्त हमारे पास एक किल्लत है पानी की। वो उसको तभी हम जो है सामना कर सकते हैं जब हम नए नए तरीके इस्तेमाल करें। वफाकी वज़ीर तजारत के दौरे से पाकिस्तान और नीदरलैंड के तजारती ताल्लुकात में मज़ीद मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। डॉक्टर मोहम्मद कामरान, 92 न्यूज़, दी हैग, नीदरलैंड। तुर्क पार्लियामेंटेरियन और चेयरमैन पाक तुर्क दोस्ती अली शाहीन से लातीनी अमरीका और कैरेबियन पार्लियामेंट के वफ़द ने मुलाकात की। अली शाहीन ने वफ़द के सरबराह की हैसियत से पानामा की खारजा कमेटी के चेयरमैन मिस्टर मारिया लोब्स और उनके वफ़द का तुर्की की ग्रैंड नेशनल असम्बली में इस्तकबाल किया। मज़ीद अहवाल आतिफ भट्ट की इस रिपोर्ट में।
तुर्क पार्लियामेंटेरियन और चेयरमैन पाक तुर्क दोस्ती अली शाहीन से लातीनी अमेरिका और कैरिबियन पार्लियामेंट के वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा अमूर पर बातचीत की गई। अली शाहीन ने अपने वफ्द के हमरा इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। अली शाहीन ने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन पाक तुर्क दोस्ती अली शाहीन का कहना था कि पैनामा में हमारे जितने भी कदम मजबूत होंगे और दोनों ममालिक के दरमियान बिजनेस में राह हमवार होगी। हमें उम्मीद है कि हम ऐसे मजबूत ताल्लुकात कायम करेंगे जो मिसाली होंगे। इनका मजीद कहना था कि हमारे वज़ीर ख़ारजा के दौरों के दौरान अहम मुआहदों पर दस्तखत किए गए। हमारी जोग्राफियाई सियासी खसूसियात जो यूरोप के लिए बहुत अहम है, तुर्की और पैनामा दोनों आने वाले दौर में मेल जोल में इजाफा होगा। आखिर में चेयरमैन अली शाहीन की तरफ से मेहमानों में शील्ड्स और तोहफ़े तकसीम किए गए। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, तुर्की। खबरें आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रखने के लिए आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ।